टॉपिक क्वेश्चन बनता है यहाँ से DPSP एंड इट्स क्लासिफिकेशन। और तो DPSP पार्ट बताओ भाई, कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 4। कैन यू टेल मी द आर्टिकल्स? इट स्टार्ट्स फ्रॉम आर्टिकल 36 टिल 51, ठीक है, टिल 51। अच्छा, टिल 51। ओके, नाउ अब एक एक करके सारे DPSP लिखेंगे एंड वी विल सी कि कैसे हम इन DPSPs को रिमेंबर कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आर्टिकल 36 क्या बोलता है? आर्टिकल 36 डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट? उसका डेफिनेशन किसमें दिया हुआ है? आर्टिकल 36 में दिया हुआ है। इफ यू सी थोड़ा क्लोजली, जब हम फंडामेंटल राइट्स करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 जो है, आर्टिकल 12 जो है एंड फंडामेंटल राइट्स इज एक्चुअली पार्ट कौन सा? 3। व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज टू कितना आ गया? 36। दिस आर्टिकल 12 आल्सो डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है? दिस आर्टिकल 12 आल्सो डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो ऐसे याद रख लो कि फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 12 पार्ट 3 में जो है इनटू 3 करोगे तो 36 आ गया, एंड DPSP का आर्टिकल 36 बोथ डिफाइन द स्टेट। दोनों क्या कर रहे हैं? दे आर डिफाइनिंग द स्टेट। अंडरस्टूड? पहला पॉइंट। ओके, आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 क्या बोलता है? इट टॉक्स अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ DPSP। इट टॉक्स अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ DPSP. Now you guys tell me, are the DPSPs justiciable or non-justiciable? Non-justiciable. Now can you tell me what do you mean by non-justiciable? Not enforceable by court of law. Not enforceable by the court of law. मतलब if any of the DPSPs are not fulfilled by the government, then you cannot challenge that act. You cannot challenge the government in the court that your DPSPs have not been upheld. Yes or no? So DPSPs are what? Non-justiciable. Why do you think that DPSPs were included in our constitution, but still they are non-justiciable? क्यों ऐसा हुआ? Why do you feel that the DPSPs, though they were part of our constitution, when the constitution was formed, still they are non-justiciable? क्यों? They give guidance to the government in the socio-economic form. They were guidance, no doubt. Instrument of instructions बोलते हैं. They are also called as what? Instrument of instructions. But why do you feel that कि DPSPs, which are very very noble, they were not made justiciable? Because the government was not prepared to uphold all the important DPSPs. They did not have the resources. We became independent. We were a very innocent, मतलब नाइव स्टेट थे उस समय, समझ रहे हो? When we were very very the beginner जो इसको बोलते हैं, we were a very very small democracy, small in the sense in the level of experience as well as in the amount of resources that we had at our disposal. Understood? We did not have the resources to give every child free and compulsory education. Yes or no? We did not have the resources to give the females with maternity relief. We did not have the resources to give our laborers social security as well as they have been as well as including them in the management of the industries. We did not have the resources. ठीक है? इसीलिए these DPSPs are considered to be the best manifesto which any political party can have. These are considered to be what? The best manifesto. Every political party has their manifesto. Yes or no? DPSPs are also called as the best manifesto any political party can have. And this statement was said by whom? Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar was the one who said DPSPs are the best manifesto any political party can have. Clear? Okay. As I was talking about the application of DPSPs, they are non-justiciable. Abhi bhi we do not have the resources to fulfill everything. But despite that thing, they are still
important and they are fundamental. They are fundamental in the governance of the country. Very very important. Governance of the country. सीधा आएगा which of these are fundamental in the governance of the country और आप लोग क्या मार्क करके आओगे? Fundamental rights. Yes or no? DPSP जो है they are fundamental in the governance of the country. ऑप्शन दिया जाएगा preamble, DPSP, fundamental duty, fundamental right. क्या मार्क करके आओगे? DPSP. गलती नहीं करोगे? ठीक है? DPSPs are fundamental in the governance of the country. Understood? Okay, बहुत बढ़िया. There is also a Supreme Court case called as the Minerva Mills case. Minerva Mills case 1980 which talks about the balance. किसके बारे में बात करता है? The balance between the fundamental rights and DPSPs. The balance between the fundamental rights and the DPSPs. Understood? ये बहुत important pointers हैं. Please note it down. लिखते जाओ साथ साथ. Okay. फिर आता है आर्टिकल 38. नाउ स्टार्ट द इंपॉर्टेंट पार्ट. आर्टिकल 38 क्या बोलता है? आर्टिकल 38 सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर थ्रू जस्टिस. ठीक है? एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज. ये जो सेकेंड पार्ट है ना, एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, दिस वाज एडेड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 38 ऑफ द डीपीएसपी वाज अमेंडेड एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज वाज एडेड. अंडरस्टूड? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सीधा आएगा 44th अमेंडमेंट एक्ट से कौन सा डीपीएसपी अमेंड हुआ है? ठीक, आर्टिकल 38 याद रहेगा. ओके. नेक्स्ट आता है आर्टिकल 39. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें बहुत सारे सब पार्ट्स. देयर इज आर्टिकल 39 स्मॉल a, स्मॉल b, c, d, e, f. आर्टिकल 39 a, b, c, d, e, f. उससे पहले विल लर्न अ कोड. हम क्या याद करेंगे? एक कोड याद करेंगे. लिखो कोड. द कोड इज इफ यू वांट हेल्दी डेवलपमेंट, of your children, so that they are lively, and distribute their Xbox पता है ना? It's a video game. And distribute their Xbox and concentrate equally on their health and strength. ठीक है? You have remembered all the DPSPs, सब parts of DPSP, A से लेके F तक. बताता हूँ कैसे. सबसे पहले if you see lively मिला आप लोगों को? lively word है ना आपके कोड में? If you want healthy development of their children and want to be lively से क्या होगा? Educate means of livelihood. Understood? Means of livelihood मतलब उनके पास they should have work so that they can earn their own money. ठीक है? And survive. Educate means of livelihood. lively के बाद देखो I have dictated distribute word है lively and distribute
डिस्ट्रीब्यूट से होगा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन of material resources, of material resources for common good, for common good. सबके पास रिसोर्सेज जो है वो क्या होने चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड. क्लियर? ओके. देन सी, कॉन्सेंट्रेशन लिखा है आप लोगों ने, यस और नो? कॉन्सेंट्रेशन और एक्सबॉक्स लिखा है ना. एक्सबॉक्स का मतलब हो गया वेल्थ, बिकॉज वेल्थी लोग ही खरीदते हैं, ठीक है, वेल्थ. एंड कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या हो गया, प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ. तो एक्सबॉक्स से और कॉन्सेंट्रेट से क्या याद रखोगे, प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ wealth. Understood? Prevent concentration of wealth. D, उसके अंदर में क्या लिखा था, इक्वली, राइट? कॉन्सेंट्रेट इक्वली, यस और नो? कोड में है इक्वली. इस इक्वल से क्या होगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, equal pay for equal work. Clear? And then we talked about health and strength. यहाँ पे क्या आएगा, health and strength, health and strength. and इससे क्या बनेगा, preserve the health and strength of workers and children against forcible abuse. Preserve the health and strength of किसका, workers and children का, workers and children का, so that against whom, against forcible abuse, कोई abuse ना करे हमको, against forcible abuse. Clear? And lastly, जो starting में हमने लिखा था ना, if you want healthy development of your child, yes or no? वो healthy development वाला चीज जो है, सॉरी ये वाला जो है D है, this is E, and F वाला जो है, this is what, healthy development वाला, opportunity for healthy development of children. Healthy development इसके लिए चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि चिल्ड्रन का क्या हो, हेल्दी डेवलपमेंट. एंड दिस वाज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. इससे ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. दैट मींस 39 small f was added by the 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. क्लियर है यहाँ तक? उस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए हमने जब प्रियम्बल पढ़ा था, we saw that socialist, secular and integrity, 3 words were added in the preamble. and अभी DPSP में हम देख रहे हैं 39F belongs to 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. क्लियर है यहाँ तक? याद रहेगा? एक बार कोड बोलोगे जोर से सब लोग, जोर से बोलो सब लोग एक साथ. Healthy development of your children so that their life being distributed among and compensate equally on their health and strength. ठीक है, इसको आप क्या करोगे, जब आप घर जाओगे ना, ट्राई टू रिकॉल द कोड अगेन एंड अगेन. एंड जब कोड रिमेंबर कर जाओगे ना, फिर हर एक कीवर्ड के साथ यू विल रिमेंबर दी टर्म. जैसे 39A में लाइवली से क्या हुआ, एडिकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड. फिर 39B में डिस्ट्रीब्यूट से क्या हुआ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज. देन एक्सबॉक्स एंड कॉन्सेंट्रेट से क्या हुआ, प्रिवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ. दिस इज योर 39C. इक्वली से क्या हुआ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. देन 39E से क्या हुआ, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ में प्रिजर्व द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सेबल अब्यूज. एंड हेल्दी डेवलपमेंट से क्या हुआ, of the children, that was added by the 42nd Constitutional Amendment Act.
ये वाला चीज ना कभी भी लोगों को याद नहीं रहता है, हमेशा भूल जाता है। उसके अंदर का इफ यू विल रिमेंबर 30, 40, 41, 42, 43, लेकिन 39 के A B C D E क्या बोल रहे हैं वो याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस कोड को अच्छे से याद करना। ठीक है, आई थिंक वो ज्यादा इजी होगा देन रिमेंबरिंग द एंटायर कंटेंट। क्लियर? 39 बड़ा ए, अभी तक हम लोगों ने देखो 39 स्मॉल a b c d e पढ़ा, राइट? नाउ वी विल टॉक अबाउट 39 बिग ए। 39 बिग ए क्या है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। लीगल एड मतलब जो लीगल फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, दोज हु feel that उनके साथ injustice हुआ है and they want to file a case in the court against the government or against anyone, तो उनको support कौन देगा? The government will provide them support with a lawyer who won't charge them any fees. Understood? केस लड़ने का कोई पैसा नहीं लगेगा। फ्री लीगल एड का मतलब लीगल एडवाइस फ्री में मिल रही है। Understood? To the poor. This also was added by the 42nd Constitutional Amendment. ठीक है, 39F and 39 बड़ा A was added by the 42nd Constitutional Amendment Act. क्लियर है? नालसा वगैरह फ्री लीगल एड में यूज। हाँ, वो फ्री लीगल एड में आता है। ठीक है, फ्री लीगल एड में आता है। ओके, देन वी हैव आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या बोलता है? आर्टिकल 40 को कैसे याद करोगे? सपोज कोई गोल है, इस गोल में सारे सरपंच एक साथ बैठे हुए हैं। ये सुन लो, एक सर्कल में क्या होता है? सारे सरपंच एक साथ बैठे हुए, तो सरपंच कहाँ पे होते हैं? पंचायत। तो आर्टिकल 40 डील्स विद पंचायत। याद रहेगा, PRI फॉर दी विलेजेस, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर दी विलेजेस। PRI मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। 40 का सर्कल देखते ही क्या बोलोगे? इट्स रिलेटेड टू PRI, रिलेटेड टू PRI। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 41, 42, 43, 44। हम 43 तक के लिए एक कोड बनाते हैं। 43 तक के लिए हम क्या बनाएंगे? एक कोड बनाएंगे। 41 से लेके 43। 43 क्यों? बिकॉज 43 में देयर आर 3 पार्ट्स। आर्टिकल 43 तो है ही, बट 43A भी है और 43B भी है। अंडरस्टूड? सब पार्ट्स हैं इसके अंदर। तो इसका कोड क्या होगा? लिखो, ये बुढ़े अंकल के घर पढ़ने, बुढ़े अंकल के घर में पढ़ाने का काम मिला। बुढ़े अंकल के घर में पढ़ाने का काम मिला। आई जस्ट रियलाइज्ड, मेरे अंदर एक ह्यूमन बीइंग है। बुढ़े अंकल को देख के क्या हुआ? एक ह्यूमैनिटी जग गई। आई जस्ट रियलाइज्ड, मेरे अंदर एक ह्यूमन है। बुढ़े अंकल के घर में पढ़ाने का मौका मिला। आई जस्ट रियलाइज्ड, मेरे अंदर एक ह्यूमन बीइंग है। सो ही गॉट सुपर इम्प्रेस्ड, और उन्होंने क्या किया? सो ही सेंट मी टू हिज कॉटेज। सो ही सेंट मी टू हिज कॉटेज, जहां पे सेंट मी टू हिज कॉटेज, जहां पे हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जहां पे हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। Therefore, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब क्या? नाउ आई एम पार्टिंग इन अ मिनी कूपर। ठीक है, पार्टी कर रहे हो ना, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। Therefore, नाउ आई एम पार्टिंग इन अ मिनी कूपर। ठीक है, सबने लिखा? शुड आई रिपीट? बुढ़े अंकल के घर में पढ़ाने का काम मिला। आई जस्ट रियलाइज्ड, मेरे अंदर एक ह्यूमन है। सो ही सेंट मी टू हिज कॉटेज, जहां पे हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। देयरफॉर नाउ आई एम पार्टिंग इन अ मिनी कूपर। देखते हैं क्या क्या हमने सीख लिया इससे। बुढ़े, सबसे पहले
शास्त्र बुद्धि से शुरू करते हैं। तो बुढ़े अंकल के घर पे पढ़ाने का काम मिला। तो आर्टिकल 41 जो है ना, इट टॉक्स अबाउट राइट टू वर्क। ठीक है, काम से क्या हो जाएगा? वर्क। पढ़ाने का काम मिला, पढ़ाने से क्या होगा? एजुकेशन। ठीक है, प्लस पब्लिक असिस्टेंस। ऑलराइट, फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। किसको दूर करने के लिए? अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए। ठीक है, फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज को सपोर्ट देने के लिए बुढ़े अंकल से क्या आ जाएगा? ओल्ड एज एंड सिक एंड डिसेबल्ड। अंडरस्टूड? तो इस कोर्स का जो स्टार्टिंग पार्ट है कि बुढ़े अंकल के घर में पढ़ाने का काम मिला, उससे यू विल बी मेकिंग अप द कंटेंट फॉर आर्टिकल 41। अंडरस्टूड? राइट टू वर्क, काम, पढ़ाने का काम मिला, दैट इज एजुकेशन, प्लस पब्लिक असिस्टेंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिक एंड डिसेबल्ड। सिका, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? पक्का? ऑलराइट, यहां तक क्लियर है? फिर मैंने क्या लिखवाया था? आई जस्ट रियलाइज्ड कि मेरे अंदर एक ह्यूमन है। तो ये जो जस्ट है प्लस ह्यूमन है, जस्ट प्लस ह्यूमन है, इससे क्या हो जाएगा? जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड maternity relief. Understood? Just and humane conditions of work and maternity relief. ये फीमेल्स के लिए है, वुमेन के लिए। इसको याद करने का एक और तरीका भी है। 42 का उल्टा करोगे तो कितना होगा? 24। अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 26 वीक्स का मैटरनिटी लीव मिलता है। तो 42 एंड 24 आप मान के चलो 24 वीक्स का मिलता है। 24 वीक्स का मैटरनिटी रिलीफ मिलेगा। इसको उल्टा करेंगे तो 42 आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, एंड मैटरनिटी रिलीफ कितना मिलता है? 24 वीक्स। इट्स नॉट द राइट नंबर, बट याद करने के लिए काम है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट मैंने क्या बोला था? सो ही सेंट मी टू हिज कॉटेज। ठीक है ना? एंड उससे पहले मैंने क्या बोला था? जहां पे हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से हम क्या बोलेंगे? लिविंग वेज, decent standard of life, socio-cultural opportunities for workers। ठीक है, for workers। एंड कॉटेज से हमें क्या लिखना है? कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो हम लोगों ने जो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था उससे क्या था? स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड लिविंग वेज आ गया। एंड देन कॉटेज से हमारा क्या आ गया? कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज आ गया। अंडरस्टूड? मिल रहा है ना? दिस इज योर आर्टिकल 43। क्या है ये आर्टिकल 43? नाउ आता है आर्टिकल 43A। आर्टिकल 43A। आर्टिकल 43A क्या बोलता है? सिक्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स। सिक्योरिंग, यहां तक लिख लिया? बोलो, लिख लिया सबने? लिखो फटाफट। हो गया? एनीवन जो मिसिंग है? ऑलराइट, तो आर्टिकल 43A। 43A क्या है? इट टॉक्स अबाउट सिक्योरिंग participation
participation of workers in management of industries. वर्कर्स को किस में इंक्लूड करें? मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में इंक्लूड करें। हमेशा ध्यान रखना 43 रिलेट्स टू वर्कर्स, 43 रिलेट्स टू वर्कर्स एंड 43A वर्कर आने के बाद क्या होगा, उनको आप क्या करोगे, मैनेजमेंट में इंक्लूड करोगे, पार्टिसिपेट करोगे। यस और नो? पहले वर्कर को लेके आओगे और उसके बाद क्या करोगे, उनको पार्टिसिपेट कराओगे, किसमें, मैनेजमेंट में। यस और नो? तो 43 वर्कर्स के लिए है, 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स के लिए। क्लियर? ओके। देन आता है 43B। 43B ये क्या था, पार्टिंग, याद आ रहा है? पार्टिंग, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिला तो क्या हुआ, यू स्टार्टेड पार्टिंग इन अ मिनी कूपर। मिनी कूपर से क्या होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अंडरस्टूड? 43B लीड्स टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोड में ये क्या है, मिनी कूपर, एंड कोड में पार्टिसिपेशन के लिए क्या है, पार्टिंग। हुआ क्लियर सबको? अंदर का कंटेंट भी याद हो गया? यस और नो? एक बार कोड बोलोगे जोर से, बोलो। बुढ़े अंकल के घर में पढ़ाने का काम मिला। I just realized I am very human being. So he I am partying in a movie. ठीक है? बुढ़े अंकल, तुम लोगों को भी ऐसे पढ़ाने का काम मिल जाए, मजे नहीं आ जाएंगे? ठीक है, तो बुढ़े अंकल के घर पे पढ़ाने का काम मिला। आई जस्ट रियलाइज मेरे अंदर एक ह्यूमन है, सो ही सेंट मी टू हिज कॉटेज, जहाँ पे क्या है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। नाउ आई एम पार्टिंग इन अ मिनी। अंडरस्टूड? ये क्लियर हो गया यहाँ तक?